हेलो एंड वेलकम टू अरेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सर, नमस्ते आदाब। मेरा नाम है फनकार ते अरेस अकेडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। सो आपां करंट अफेयर हो गया, जीके के सैशन है जिहड़े लगातार रिवीजन आपां कर रहे हैं, जिहड़े कि तुहाडा यानी हुण तुहाडे जिहड़े PSSB दे पेपर होने। सो आपां अज भी करंट अफेयर ही करने। करंट अफेयर तां चलो वन लाइनर शो जिवें आपां कहने भी वन लाइनर जिहड़े क्वेश्चन है वो मैं करवाउणा ही आ, बट अज तुहानूं मैं डिफेंस एक्सरसाइजां भी करवाऊंगा जिहड़ी कि इंपॉर्टेंट मार्च दीआं कह लो डिफेंस एक्सरसाइज। हालांकि मैं इहदे ते एक अलग भी लैक्चर लिआऊंगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2023 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 2023 ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, सिंगापुर हो गया, डेनमार्क हो गया, जापान हो गया, राइट, UAE हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड UK हो गया। सो ये याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर, डेनमार्क, जापान, UAE ते ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ UK, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ CM ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ, ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ। ਸੋ ਇਹ CM ਗਵਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਪਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ 2023 ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਨੀਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਪਨ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲਫਰ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਗੋਲਫ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੋਲਫ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਲਫਰ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਲਫਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ। ਸੋ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਨੀਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਪਨ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਰਾਈਟ, ਬੰਗਲੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2023 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਾ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਊਗਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਵੇ ਕਿ IIT ਕਿਹੜੀ IIT ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ IIT ਇੰਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਸੇ ਦੱਸਤਾ IIT ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, IIT ਇੰਦੌਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਆ 2023। ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। IIT ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ IIT ਇੰਦੌਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ, यानी उत्थे अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी सारा लीथियम मिलूगा जिहदे कामयाबी हासिल हुई है। यानी ऐ कह लो भी जिहड़ा लीथियम रिजर्व यानी उत्थे अपना रिजर्वर मिलिया हैगा उत्थे 5.9 मिलियन टन 5.9 मिलियन
टन है जिहड़ा बेसिकली आपां नूं लीथियम मिलेगा। लीथियम दी बैटरी वगैरह बनदियां। हाल ही दे विच न्यूज़ है कि रिलायंस जिहड़ी इंडस्ट्री है वो काफ़ी इंटरस्ट दे विच दिखा रही है, राइट। सो 5 मिलियन टन जिहड़ा लीथियम है बेसिकली उत्थे मिलेगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार पूछा जा सकता भी जम्मू कश्मीर के किहड़े जिले दे विच मिलिया, यानी किहड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लियो, उहदा नाम हैगा जी रईसी। उहदा नाम याद रख लियो, उहदा नाम हैगा रईसी, उहदा नाम हैगा भाई, सो ये याद रख लियो रईसी, REASI। रईसी यानी डिस्ट्रिक्ट है, जिहड़ा जिला बेसिकली इत्थे वैसे तो जम्मू कश्मीर ही इंपॉर्टेंट बनूगा, पर कई बार अज तक ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ क्वेश्चन आते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी पूछ ਲੈਂਦਾ। सो रीसी याद रख लो। प्लेस का नाम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮਿਆਣਾ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ है, हमियाना। इन्ना तो मैनू लगता नहीं पूछा जाऊगा, बट फिर भी चलो हमियाना एरिया जो पूछ लिया तो है ना, बट रेसिस जिला जरूर याद रख लियो। 5.9 मिलियन टन तो याद रखना ही रखना, राइट। इस तो बाद आ गया कहता जी ਤਰਕਸ਼ नाम का अभ्यास भारत ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ देश ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। यानी ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ एक्सरसाइज है ना, द एक्सरसाइज नेम्ड ਤਰਕਸ਼। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਕਸ਼ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ NSG ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ SOF US ਦੀ ਹੈ। US ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ SOF स्पैशल ऑपरेशन फोर्स हो गया, तो NSG अपना नैशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गया। सो US की यह हैगी है इंडिया तो US के विचकार बेसिकली जिहड़ा तरकश यानी अभ्यास एक्सरसाइज हुई है। सो नाम याद रख लो तरकश, ठीक है। होर मैं एक्सरसाइजा करवा दिना जिन्हों तो क्वेश्चन तुहानूं पूछे जा सकते हैं। कई एक्सरसाइजा ऐसिया होंदियां जिहड़ियां कि कंट्रीज़ के नाम तो ही बन जाती, उन्होंने मिला के उन्होंने यानी कि उन्होंने नाम रखा जाता है, उत्थों तो अपन पता लग जाता। बट कई ऐसिया जिहड़ियां कि तरकश है ना, जेकर 2022 की देखोगे तो ओमान के नाल हुई सी, इस बार US के नाल है। सो इहो जिहे तो तुहानूं याद रखने भी पै सकते हैं, राइट। हो गया। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इस तो बाद मैं एक्सरसाइजा कुछ करवाउण जा रहा, थोड़ा जिहा फोकस रख लो बस इत्थे। जिवें कि कोंकण एक्सरसाइज है। हुण कोंकण एक्सरसाइज जिहड़ी हैगी है भाई, यह कहंदा भारत ते यूनाइटेड किंगडम यानी UK है ना। हुण UK की जिहड़ी नेवी है उहदा नाम की है रॉयल नेवी। UK की जिहड़ी नेवी है उहदा नाम की है रॉयल नेवी। अपनी इंडियन नेवी है जिवें उवें UK की नेवी नूं की कहंदे आ रॉयल नेवी। सो बायलैटरल एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है, जिहदे विच कहंदा इंडिया ते यूनाइटेड किंगडम दियां यानी UK दियां, इंडिया भारत ते ब्रिटेन दियां जिहड़ियां नेवल जिहड़ियां यानी तुसीं कह लो भी कमांड्स है, यानी उन्होंने एक्सरसाइज यह की है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कहंदा यह 2004 तो बेसिकली स्टार्ट हुई सी। इस तो बाद एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय बोथ नेवीज इन रोटेशन। द एक्सरसाइज यानी इस बार इंडिया के रोटेशन वाइज ही होंदी रहिंदी है, कदे ना कदे UK के होंदी है, राइट। द एक्सरसाइज प्रोवाइडेड एक्सीलेंट ट्रेनिंग द परसोनल ऑफ द बोथ द नेवीज, राइट। हो गया। सो कोंकण एक्सरसाइज तुहानूं पूछा जा सकता भी किहड़ी ते किहड़ी कंट्री दे विच आ, बस तुसीं इन्ना याद रखना इंडिया ते UK विचकार है, यानी इंडियन दी होगी तुहाडी इंडियन नेवी एंड UK दी होगी रॉयल नेवी। सो याद रख सकते हो कोंकण एक्सरसाइज, राइट। इस तो बाद आ गया तुहाडा कि इंडिया तो UK के विचकार होर किहड़ी एक्सरसाइजा होंदियां, इन्हां नूं नोट कर लिओ, ध्यान दे नाल याद कर लिओ, राइट। जिवें कि इंद्रधनुष पेपर दे विच बहुत वार पूछा जाता कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो UK के विचकार एयरफोर्स एक्सरसाइज होंदी है, जिन्हों आपां इंद्रधनुष कहने हैं। इंद्रधनुष तो ही पता लगता होगा कि एयर दे विच हवा दे विच, इस करके यह एयरफोर्स एक्सरसाइज है। एंड कोंकण है जिहड़ी बेसिकली उधर सारा कोस्टल एरिया है, इस करके वो नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, राइट। सो याद रख लो। एंड एक्सरसाइज इंद्रधनुष नाम तो ही पता लगता कि यह एयरफोर्स एक्सरसाइज है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता भी यह नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है या आर्मी जो भी यानी एक्सरसाइज, राइट। सो इंद्रधनुष जिहड़ी हैगी इंडिया ते UK के विचकार ही है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होगी। एंड अजय वॉरियर हो गया, ये ज्वाइंट मिलिटरी एक्सरसाइज होगी, राइट। अजय वॉरियर ये भी नाम तो ही पता लग रहा है। सो अजय वॉरियर जिहड़ी हैगी है ये भी इंडिया ते UK के विचकार ही है, जिन्होंने आपां ज्वाइंट मिलिटरी एक्सरसाइज कहने हैं। इस तो अलावा जिवें कि अफिंडेक्स, उन्हें नाम तो ही तुहानूं पता लग रहा है, अफ्रीका हो गया तो इंडिया हो गया। अफ्रीका हुण कोई एक देश तो है नहीं, अफ्रीका तो कॉन्टीनेंट है, राइट। सो बेसिकली कहता अफ्रीका भारत फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास अफिंडेक्स 2023 का दूजा एडिशन कहता पुणे विखे होया। यानी पहली गल तो यह किन्ना विचकार होंदा, अफ्रीका कॉन्टीनेंट ते इंडिया विचकार ही तो हो गया। एंड होया कित्थे भाई, यह पुणे विचकार यानी पुणे दे विच होया, राइट। सो याद रख लो यह कित्थे होयागा, पुणे दे विच, राइट। द एक्सरसाइज कहता इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ओवर 20 नेशनस ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टीनेंट। यानी अफ्रीका कॉन्टीनेंट दे विच 20 देशों ने लगभग 20 नेशन जिहड़े जिन्होंने हिस्सा लिया गा। सो ये पूछा जा सकता भी अफ्रीकन कॉन्टीनेंट दे विच किन्ने नेशनां ने हिस्सा लिया,
सो 20 नेशनां ने हिस्सा लिया, यानी 20 देशों ने हिस्सा लिया। एंड अफ्रीका कॉन्टीनेंट ते इंडिया तो पूछा जा ही सकता है ना। तो होया कित्थे ये भी जरूरी है, याद रख लो भाई ये पुणे दे विचकार है। एंड ਇਹਦਾ थीम जरूर इंपॉर्टेंट बनता है, थीम पूछा जा सकता। थीम हैगा ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस, राइट। ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, इनू अंग्रेजी जी याद रखने की कोशिश करो, पंजाबी दे विच बहुत घट आने के चांस है, क्योंकि जेकर तुहानूं पुछया भी जाऊगा तो ऑप्शन दे विच उत्थे कई बार या क्वेश्चन दे विच इंग्लिश दे विच ही लिखिया रह जाता, राइट। सो ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस, सो याद रखना इसका थीम जिहड़ा कि अफिनडेक्स का पुणे दे विच होया, ये तो याद रखना ही रखना। इस तो बाद आ गया जी सी ड्रैगन। हुण सी ड्रैगन आ बेसिकली ये 3rd एडिशन होया गया एक्सरसाइज का, एंड ये यूएसए दे विच होया, यानी इसका जिहड़ा होस्ट है जिहड़ा वो यूएसए है, राइट। यूएस दे विच होयागा 15 तो 30 जिहड़ा कि मार्च 2023 दे विच, एंड कोआर्डिनेटेड मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज, राइट। यानी मल्टीलेटरल वारफेयर एंटी सबमरीन है जिहड़ी, यानी ओबवियस गल है ये भी नेवल एक्सरसाइज दे नाल ही होगा। एंड इहदे विच जिहड़ा इंडियन नेवी ने तो पार्टिसिपेट कीता ही कीता, इंडियन नेवी दे नाल नाल जिहड़ा पार्टिसिपेशन होई है भाई वो, अच्छा यूएस दे विच होया कित्थे, गुआम दे विच। जेकर मान लो यूएस दे विच तुहानूं जगह का नाम पुछया जाए तो वह गुआम है ना, गुआम जगह दे विच होया। इंडियन नेवी के नाल पार्टिसिपेशन होर किहदी रही है भाई यूएस नेवी, ओबवियस गल है जिथे होना, जिन्हें होस्ट किया उन्होंने नेवी तो होगी, जापान की होगी, कैनेडा की होगी, एंड साउथ कोरिया की होगी, राइट। एंड इंडियन नेवी ने नाल दस्या भी होया कि इन्होंने एयरक्राफ्ट किहड़ा यूज़ किया, जिवें इंडिया का जिहड़ा P8I एयरक्राफ्ट यूज़ होयागा, एंड इस तरीके दे नाल जेकर आपां यूएस नेवी का देखिए तो P8A होयागा, जापान का देखिए तो P1 होया, कैनेडा का CP140 होया, एंड साउथ कोरिया का P3C होया। हुण गल फिर उत्थे आ जाती कि इत्थे आपां नूं किहड़ा याद करांगे, सिर्फ आपां इंडिया का याद रखना गा, वध तो वध तुसीं जिहड़ा होस्ट कंट्री है यानी यूएस है वह याद रख सकते हो। मेरे मुताबिक तो कला इंडिया याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। तो इंडिया का जो एयरक्राफ्ट यूज़ होया भाई वह P8I है, राइट। सो ये याद रख लो P8I। सो यह एयरक्राफ्ट है जो इंडिया का यूज़ होएगा, एंड जेकर यूएस नेवी की गल करिए तो P8A ये भी तुसीं याद रख सकते हो, राइट। हो गया ए तो तुहानूं पता लग रहा है कि USA है, एंड आई तो इंडिया हो गया, याद रखना भी सौखा, P8 दोनों से लगता ही है, राइट। हो गया। सो यह गुआम सी ड्रैगन जिहड़ा कि मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज हुई है, राइट। हो गया। इस तो बाद आप गल करिए तो बोल्ड कुरुक्षेत्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल्ड कुरुक्षेत्रा ये एक्सरसाइज है सिंगापुर ते इंडियन आर्मी के विचकार हुई है, 13वां एडिशन होया बायलैटरल एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र, एंड कित्थे हुई है भाई एट जोधपुर मिलिटरी स्टेशन इंडिया, यानी जोधपुर दे विच होया है मिलिटरी स्टेशन जिहड़ा जोधपुर दे विच हैगा, उत्थे यह एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का यह 13वां एडिशन है, एंड किहदे विचकार होया सिंगापुर आर्मी ते इंडियन आर्मी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह बहुत पुरानी एक्सरसाइज है जिहड़ी कि बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर आर्मी ते इंडियन आर्मी दे विच हुंदी रहिंदी है, राइट। सो सिंगापुर आर्मी इंडियन आर्मी दोनों याद रखना है। इस तो बाद आ गया, अच्छा होई कित्थे आ, बस जोधपुर मिलिटरी स्टेशन जरूर याद रखियो। इस तो बाद आ गया कहता जी ला पेरोज। हुण ला पेरोज कहता यह जी एक्सरसाइज है बेसिकली हिंद महासागर खेतर बहुपक्षी अभ्यास ला पेरोज के तीजे संस्करण की मेजबानी करेगा, राइट। यानी ओबवियस गल है इंडियन ओशन एरिया के यानी जिहड़ा हो रहा है इक्को एक ओशन है जिहड़ा कि किसी कंट्री के नाम से वो अपने इंडिया के नाम से है, जिन्होंने आप इंडियन ओशन एरिया कहने, यानी उत्थे ये मल्टी जिहड़ी लेटरल एक्सरसाइज जिहड़ी हो रही है, राइट। ये भी ओबवियस गल है जेकर पानी दे विच है तो ओबवियस गल है ये भी नेवल एक्सरसाइज है, यानी नेवी जिहड़ियां आउणगियां, जिवें कि ये जिहड़ियां नेवी किहड़ियां एक तो भारत तो हैगी है, भारतीय जल सेना हैगी, आस्ट्रेलियन नेवी होगी, जापानी नेवी होगी, राइट। इस तो बाद यूनाइटेड स्टेट्स यानी जिन्हां दी रॉयल नेवी है, राइट। तो ये जरूर याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स जी यूएस की होगी, यूके की भी हैगी इत्थे, यूके का जिवें तुहाडा हो गया जिहड़ा रॉयल नेवी होगी ब्रिटेन की यानी कि है ना, तो मैरीटाइम सैल्फ डिफेंस यानी जापान की होगी, भारती होगी, फ्रांस हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो याद रख लो, ठीक है ना। सारे मैं हैडलाइन यानी जड़े हाईलाइट कर ही देते है ना। सो याद रख लो, आस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, रॉयल नेवी हो गया यानी यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। सो ये सारे तुम याद रख सकते हो। इन्हों के विचों हालांकि हुण तुसीं कहोगे भी किहड़ा कंट्री असीं याद करांगे, ना बस सिर्फ ये पूछा जा सकता भी इंडिया के नाल किहड़ा कंट्री सी, बाकी तुहानूं माड़े मोटे हिंट अपने आप मिल जाएंगे पेपर के विच, पता लग जूगा। एक बार पढ़ के जाओगे तो यानी 2-3 बार इहनूं रीड कर दोगे, राइट। सो याद रख लो भाई ला पेरोज, राइट। होया कित्थे है, इहदे आउण दे ज़्यादा चांस कित्थे है, इंडियन ओशन एरिया यानी कित्थे ये होस्ट होयागा। इस तो बाद आ गया कहता जी जिहड़ा फ्रिंजेक्स है, हुण ये भी नाम तो ही पता लग रहा, फ्रिंजेक्स FR तो फ्रांस हो गया, तो IN तो इंडिया हो गया। एक्सरसाइज है यानी
इंडो फ्रांस एक्सरसाइज कह सकते हैं इंडो फ्रांस राइट इंडो फ्रेंच कह लो इंडो फ्रांस कह लो सो इंडियन एंड फ्रेंच आर्मी फ्रिंजेक्स जिहड़ा कि होया भाई बिगिनस एट पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन जिहड़ा कि केरला दे विच तिरुवनंतपुरम दे विच सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया यानी जिहड़ा मिलिट्री स्टेशन है जिवें आपां जोधपुर मिलिट्री स्टेशन याद किया उवें तुहानूं पेंगोडे जिहड़ा मिलिट्री स्टेशन याद करना पैना है कित्थे केरला दे विच केरला की किहड़ी सिटी दे विच तिरुवनंतपुरम दे विच एंड इहदा भी थीम है जिहड़ा याद रखियो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशनस है ना सो इहदा जिहड़ा थीम है बेसिकली वो जरूर याद रख लिओ जिवें कि आपां अफिंडेक्स दा पढ़िया सीगा अफिंडेक्स दा जिहड़ा थीम है ते दोनों दे विच थोड़ा जिहा फर्क है अफिंडेक्स दा जिहड़ा हैगा वो ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन है एंड जेकर आप गल करिए तुहाडा फ्रिंजेक्स की तो यह जोड़ा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशनस ठीक है सो थीम यदा ह्यूमैनिटेरियन तो जरूर स्टार्ट होंदा हो सकता कई बार ऑप्शन के दोनों पे हो सो थोड़ा जिहा थोड़ा जिहा गाहां पढ़ के जा वड़ियो राइट है एंड किन्ना दे विचकार ओबवियस गल है जेकर फ्रेंच है तो भारत ते ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रांसीसी फौज के विचकार ये होयागा तिरुवनंतपुरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया इस तो बाद आ गया जी शिन्यू मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है शिन्यू मैत्री सो शिन्यू मैत्री जी है भाई ये किन्ना दे विचकार है ये इंडिया ते जापान के विचकार एक्सरसाइज है सो इंडियन एयर फोर्स होगी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री विद जापान एयर सैल्फ डिफेंस फोर्स राइट है सो यानी यह एयर फोर्स एक्सरसाइज है जी कि इंडिया ते जापान के विचकार है भारतीय हवाई सेना ते जापान एयर सैल्फ डिफेंस फोर्स सो याद रख सकते हो शिन्यू मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है राइट हो गया इस तो बाद आ गया जी कोबरा वरीयर हुण कोबरा वरीयर एक मल्टीलेटरल यानी मल्टी कंट्री जी एक्सरसाइज है सो एक्सरसाइज कोबरा वरीयर है जी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज यह है एंड ये जोड़े है भाई फिनलैंड हो गया स्वीडन हो गया दक्षिणी अफ्रीका हो गया संयुक्त राज्य अमरीका हो गया सिंगापुर है जड़ियाँ इन्हां दी जिन्नियां भी हवाई सेनावां राइट आ ते उन्होंने यानी कि रॉयल यानी यूके की भी हैगी रॉयल एयर फोर्स जिवें रॉयल नेवी है उमें यूके की रॉयल एयर फोर्स भी है एंड भारतीय हवाई सेना के नाल हिस्सा लैणगे सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोबरा वरीयर ये इंपॉर्टेंट हो सकता क्योंकि यह न्यूज़ के काफ़ी रहिंदा गा कोबरा कमांड राइट सो याद रख लियो सो फिनलैंड स्वीडन साउथ अफ्रीका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिंगापुर ते नाल रॉयल एयर फोर्स ते इंडियन एयर फोर्स ये जरूर याद रख लेना कोबरा वरीयर राइट हो गया इस तो बाद जेकर आप गल करिए तो प्रधानमंत्री कहता अच्छा ये एक्सरसाइजा सारिया मैं करवातियाँ एक्सरसाइजा तो मैं अलग तो लैक्चर भी पा दूंगा आए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजा हो जाएगियाँ जहाँ जिमें जिमें मैं करंट अफेयर करवाए ने वो थोड़ा थोड़ा मैं एक्सरसाइजा करवाता रहूँगा राइट अलग तो भी पा सकता ताकि तो डेडिकेटेड एक लैक्चर बन जाए जिहदे विच सारियां एक्सरसाइजा हो जाएगियाँ वो कोई चक्कर वाली गल नहीं इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहता किहड़े शहर में अरबी जी अकादमी का यानी अकैडमी का उद्घाटन किया गया सो यानी अरेबिक आ बेसिकली इत्थे अरबी लिखा होया अरेबिक अकैडमी है जी बेसिकली अरबी भी कह लो पंजाबी चलो है ना अरेबिक अकैडमी है जी वो कित्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किहड़ी सिटी दे विच इनैगोरेट कीता गा वो भाई कीता गा मुंबई दे विच राइट मुंबई दे विच कीता गया एंड उस अकैडमी का नाम जरूर दस दिना मैं पूछा जा सकता गा अल्जामिया तुस सैफाइया राइट सैफाइया अल्जामिया तो सफाइया हो सकता मैं थोड़ा जिहा प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग होवां बट इन्हूं इस तरीके नाल याद कर लिओ पेपर दे आऊगा तुहानूं देखते ही पता लग जू कि अल्जामिया तो सैफिया राइट सो यही है जिहड़ा अरेबिक अकैडमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के इनैगोरेट किया गा राइट सो याद रख लिओ इस तो बाद किहड़ी वित्ती सेवा कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति अहुदे की याद में कहता G20 थीम के नाल QR कोड जारी किया यानी बेसिकली जिवें आपां पेटीएम तुसीं आम तौर पर शॉप के जाने हो तो पेटीएम के ਜਿਹੜਾ QR कोड ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ G20 ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ पेटीएम ने अपना एक QR कोड जारी किया गा पेटीएम ने एक QR कोड अपना जारी किया सी सो यही अपन पूछा कि किहड़ी वित्तीय सेवा कंपनी है यानी किहड़ी फाइनैंशियल सर्विस कंपनी है जिन्होंने अपना QR कोड जारी किया कादी याद कि जिहड़ा G20 थीम आ उसनूं आपां होस्ट किया इंडिया ने तो पेटीएम ने किया भाई इस तो बाद आ गया विश्व यूनानी दिवस कहता हाल ही में कहता 11 फरवरी पहली गल तो जिहड़ा अपना वर्ल्ड यूनानी डे है 11 फरवरी होंदा ये जरूर याद रखना गा बाकी इन्होंने क्वेश्चन की पूछा गा भी 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे तो ऑबजर्व किया जाता गा
पर एक तो ਇਹਦਾ थीम पूछा जा सकता भी ਇਹਦਾ थीम की है, एक ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ याद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ यानी ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਹਕੀਮ अजमल खान, हकीम अजमल खान। सो याद रख लो हकीम अजमल खान जेडे कि पितामा मन्ने जाते हैं, यानी फादर मन्ने जाते हैं, पितामा कह लो फादर कह लो राइट है, या पायोनीर कह सकते हो राइट। ये कादे मन्ने जाते हैं भाई यूनानी मेडिसिन इन इंडिया, यूनानी मेडिसिन इन इंडिया, यूनानी मेडिसिन इंडिया। एंड ਇਹਦਾ थीम भी जरूर याद रख लियो, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ थीम हैगा यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, यूनानी मैडिसन फॉर पब्लिक हेल्थ। ਇਹਦਾ प्रोग्राम भी लगाया गया सी ਜਿਹੜਾ कि अपनी कैपिटल दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ लगाया गया सी। शायद ਇਹ ना पूछा जाए भी प्रोग्राम कितने लग्या सी, बट ਇਹਦਾ थीम जरूर पूछा जा सकता। यूनानी मैडिसन फॉर पब्लिक हेल्थ ਇਹਦਾ थीम है। एंड किन्ना ਦੇ नाम ਤੇ है भाई, किन्ना ਦੀ बर्थ एनिवर्सरी ਤੇ यानी कि किन्ना ਦੀ याद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। हकीम अजमल खान ਜਿਹੜੇ कि पितामा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ कि यूनानी मैडिसन ਦੇ मोढी ਇਹ है राइट। हो गया। इस तो बाद आ गया हाल ही ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, यानी ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ 15ਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ द्रौपदी मुर्मू। ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ द्रौपदी मुर्मू ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾਗਾ। ਕੱਤਕ यानी ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਈਟ, ਉੜੀਸਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੱਤਕ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਕਾਂਗਰਸ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨੈਗੋਰੇਟ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ द्रौपदी मुर्मू, 15ਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉੜੀਸਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। उड़ीसा ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਈਟ। ਹੋ ਗਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਭਾਈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਨਾਭਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾਸ, ਨਾਭਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾਸ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਾਭਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾਸ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਹਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਭਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸੀਐਮ ਕੱਤਕ ਸਿਟੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू 15ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ, यानी ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗੈਪ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ यानी ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆ, यानी ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਗੀ। ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਪਲੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਬੀਮਾ ਸੁਗਮ ਪੋਰਟਲ, ਬੀਮਾ ਸੁਗਮ ਪੋਰਟਲ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੀਮਾ ਸੁਗਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਈਟ। ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਮਾ ਸੁਗਮ ਪੋਰਟਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, यानी ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਕਮੈਮੋਰੇਟ यानी कि ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 13 ਜਨਵਰੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ यानी ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, 144ਵਾਂ 144th। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ
फ्रीडम मूवमेंट्स हुई उन्होंने काफ़ी योगदान सरोजनी नायडू का आप पढ़ते हैं। सो 144वां बर्थडे जो इन्हों का मनाया गया। राइट हो गया। सो याद रखना भाई। इस तो बाद आ गया कहना उड़ीसा हाई कोर्ट के सब तो सीनियर जज आ जोड़े कि जस्टिस जसवंत सिंह नूं कहना किहड़े राज के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य जज नियुक्त किया गया। यानी चीफ जस्टिस सब तो वड्डा जज होंदा गा, ओबवियस गल है। किहड़ी स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, जिहड़ा कि जसवंत सिंह भाई उड़ीसा हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज सीगे। तो जसवंत सिंह त्रिपुरा स्टेट हाई कोर्ट यानी त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। सो याद रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुण त्रिपुरा की जेकर गल हुई है तो त्रिपुरा के CM गवर्नर जरूर याद होने चाहिए। त्रिपुरा के जोड़े CM भाई उन्होंने नाम है जी मानिक साहा। सो याद रख लो। एंड जोड़े गवर्नर भाई उन्होंने नाम है जी SN आर्या सतिंदर नारायण आर्या। जेकर पूरा पूछा जाए तो याद रख सकते हो सतिंदर नारायण आर्या त्रिपुरा के जसवंत सिंह नूं चीफ जस्टिस बना दिता गया। राइट हो गया। इस तो बाद आ गया किहड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सोने का तगमा जितया है, यानी कि गोल्ड मैडल जितया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। ये पहला भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं उदों भी दसिया सी भी एक IIT इंदौर ने एक्सीलेंस अवार्ड जितया गया एंड गोल्ड मैडल जितया गया। किहड़े स्टूडेंट जितया गया? IIT इंदौर। सो ये तुसीं जरूर याद रखना है, IIT इंदौर। एंड IIT इंदौर नूं जिहड़ा अवार्ड दिता गया वो इजिप्ट के प्रेजिडेंट द्वारा दिता गया। इजिप्ट के प्रेजिडेंट द्वारा दिता गया। सो इजिप्ट का प्रेजिडेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हों की भी ज्वाइनिंग यानी अपॉइंटमेंट है जी हाल ही हुई सी। सो इन्हों का नाम है भाई जिहड़ा कि अबल फत्ता अल सीसी। सो ये नाम भी याद रख लो। अबल फत्ता अल सीसी इजिप्ट के प्रेजिडेंट है। IIT इंदौर वाले स्टूडेंट्स को इन्होंने एक्सीलेंस का गोल्ड मैडल दिता गया। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जी हुई कितने भाई, ये दुबई के हुई सी। ये आप पहला पढ़ चुके हैं। अच्छा मैं फिर दसदा कि मैं पढ़ाਉਂਦਾ चीज़ां थोड़ियां जी दसना भुल जाना। मैं फिर दसदा, एक बार दसूँगा, बाले बारी मैं दसना नहीं कि अपने को जोड़े ऑफलाइन के टैसट होंगे सी उन्होंने मैं एक बुकलेट बनाई आ 31 फुल मॉक टैसट है जिहदे विच 31 फुल मॉक टैसट है। जेकर तुसीं यह लेना चाहुंदे हो भाई लै सकते हो। राइट होर बहुत सारिया मैं अनाउंसमेंट करन नूं बैठांगा पर टाइम की बहुत शॉर्टेज है मेरे को। यूट्यूब पर एक ही वीडियो पैंदी है, मैं दो पाउणियां चाहुंदा पर कोशिश फिर मैं कहूँगा कि कल तो करूँगा। राइट 31 फुल मॉक टैसट है, बाईलिंगुअल है। जेकर तुसीं इस टैसटां नूं लाउणा चाहुंदे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो तुम 31 मॉक टैसट अपने घरे मंगा सकते हो या अकैडमी बठिंडे आके ले जा सकते हो। चलो खैर बाकी गल्लां बातां अलग तो। इस तो बाद आ गया जी कहता इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वालों जारी किए गए एक नवे पूर्व अनुमान के अनुसार 2025 तक एशिया की ज़्यादातर बिजली किहड़े देश में वरती जाएगी। यानी एक न्यू फोरकास्ट यानी अनुमान लगाया गया 2025 तक का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा कि भाई किहड़ा एशिया का ऐसा कंट्री है जिहड़ा 2025 तक सब तो ज़्यादा यानी बिजली की खपत करूगा। राइट यानी उन्होंने यूज करूगा वह भाई किहड़ा है? चाइना। राइट दूसरे नंबर तो ऑब्वियस गल इंडिया है बट चाइना सब तो ज़्यादा बिजली यूज करने वाला 2025 तक। राइट हो गया। इस तो बाद आ गया कहता नैशनल कौंसल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा किहड़े शहर में कहता एक साइंस सेंटर और प्लैनेटोरीयम का निर्माण किया जाएगा। ऑब्वियस गल है कर दिता गया, बहुत सोहना बनाया गया। इनू तुम शॉर्ट के साइंस सेंटर भी कह सकते हो। राइट यानी नैशनल कौंसल ऑफ साइंस म्यूजियम जां साइंस सेंटर कह लो जां फिर पूरा नाम ये साइंस सेंटर एंड प्लैनेटोरीयम। यह कंस्ट्रक्ट किया गया भाई कोटा मतलब राजस्थान के। राइट सो एक कोटा या तो स्टेट पूछा जा सकता या सिटी पूछी जा सकती है। सिटी तो तुम फिर याद रख ही लओगे। राइट हो गया। तो आप राजस्थान के भी CM की गल कर लेने क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी रहते सचिन पायलट ते गहलोत। सो CM है जोड़ा भाई वह नाम की है अशोक गहलोत एंड गवर्नर है जोड़े भाई उन्होंने नाम की है जी कलराज मिश्रा। गवर्नर है जोड़े उन्होंने नाम की है कलराज मिश्रा। सो ये याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इस तो बाद आप जेकर गल करिए, अच्छा पिछला ले लो भाई स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। इस तो बाद कहता जी स्विस एयर ट्रैकिंग इंडैक्स IQ एयर के अनुसार भारत का किहड़ा शहर दुनिया का दूजा सब तो प्रदूषित शहर बन गया। देखो आप दिल्ली करते सी कि दिल्ली सब तो ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड के जां फिर आप इंडिया की गल करते सी पर हुण दिल्ली नूं सरपास कर गया किहड़ा भाई टॉप 10 दे विच आ गया पूरे वर्ल्ड के। उहदा नाम है भाई मुंबई। तो मुंबई पूरे वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर आ चुकिया जिहड़ा कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गया। इंडिया के तो है ही हैगा एंड वर्ल्ड के दूजे नंबर पर। एंड जेकर वर्ल्ड के पहले नंबर की गल करी जाए तो अपना गुआढ़ी मुल्क ही है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के शहर है जोड़ा लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा है ना
ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਿਸ 에ਅਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ IQ 에ਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ EBG ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਚੇਨਈ 1937, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ 에ਅਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਧਰਮਾ ਗਾਰਡੀਅਨ 2023 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮਾ ਗਾਰਡੀਅਨ 2023। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਸਵਰਾਜ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਾਜ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਭਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ 2021-22 ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਲਮ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੋਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਤੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਰ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।